Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Ramsey model decentralized household problem. In the previous video we have discussed the social planner problem, and now in this case we'll discuss decentralized household problem. So initially we discussed that Ramsey model or Ramsey-Cass-Koopman optimal growth model is a micro foundation of growth model. It is also known as planner's problem. In this model, savings is endogenously determined. In the decentralized household problem, we consider a market economy with many households that are identical, therefore price taker. WT and RT denotes wage rate and rate of return on capital respectively. Firms are competitive and identical, that is they hire labor and capital at WT, that is wage rate, and rate of return on capital, which is denoted by RT. Using labor and capital, firms produce final output Y. Therefore YT is a function of LT KT. So output is produced using two inputs, that is labor and capital. RT, that is rate of return on capital, is equals to marginal productivity of capital, which is nothing but F dash KT. Similarly, WT, that is wage rate, is equals to marginal productivity of labor, that is FKT minus KT into F dash KT. Each household will maximize its welfare, that is W is equals to integration from 0 to infinity UCT e की पावर माइनस PT DT. ठीक है, हर एक हाउस होल्ड के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल लेबर स्टॉक होगा अवेलेबल, और एडिशनली हर हाउस होल्ड बोरो कर सकता है एक दूसरे से. हम लेट कर रहे हैं 80 डिनोट करता है पर कैपिटा एसेट स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड इन पीरियड T is equals to KT, that is per capita capital stock, and then minus BT, that is BT is per capita debt of household in period T. अगर हाउसहोल्ड नेट लेंडर है तो BT क्या होगा, नेगेटिव होगा. हेंस पर कैपिटा इनकम हाउसहोल्ड हो जाएगा WT प्लस RT AT, विच हाउसहोल्ड स्पेंड्स ऑन कंजम्पशन ऑन एंड फर्दर एसेट एक्यूमुलेशन. अगर हम बात करें बजट कॉन्स्ट्रेंट फेस्ड बाय हाउसहोल्ड्स इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा टर्म्स, तो क्या हो जाएगा CT प्लस DA अपॉन DT प्लस N टाइम्स AT इज इक्वल्स टू WT प्लस RT AT. तो जो ये टर्म है CT तो क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन. DA अपॉन DT प्लस NAT क्या है, इन्वेस्टमेंट और पर कैपिटा एसेट एक्यूमुलेशन इज इक्वल्स टू WT प्लस RT AT इज नथिंग बट YT. ठीक है, WT प्लस RT AT विच इज़ दी रिटर्न ऑन, WT denotes return on labors and RT denotes return on capital. तो देखो बजट कॉन्स्ट्रेंट फेस्ड बाय हाउसहोल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा टर्म्स, तो ये हो जाएगा CT प्लस DA अपॉन DT प्लस NAT. CT डिनोट करता है पर कैपिटा कंजम्पशन, DA अपॉन DT प्लस NAT डिनोट करता है एसेट एक्यूमुलेशन, और पर कैपिटा एसेट एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू WT, दैट इज वेज रेट, प्लस RT AT. RT इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन asset into AT. Or whereas in case of the previous video that we discussed, the centralized problem or the planner's problem, the budget constraint was CT D plus DK by DT plus N times KT is equals to YT. Now in this will therefore complete dynamic optimization problem household can be written in terms of two time dependent variable, that is CT and AT, that is per capita consumption and per capita asset accumulation. So we'll maximize welfare, which is integration from 0 to infinity UCT e की power minus PT dt subject to the budget constant, that is DA by DT is equals to WT plus RT AT minus NAT minus CT. we did nothing, हमने ये टर्म्स को, दोनों टर्म्स को उस साइड राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया, वेयर हमें A0 दैट इज़ इनिशियल स्टॉक ऑफ एसेट इज़ गिवन. then we are given the Hamiltonian function which is H is equals to UCT e की पावर माइनस PT प्लस लैम्डा T WT प्लस RT minus N into AT minus CT. Then the first order conditions in terms of control variable CT, state variable AT and co-state variable lambda T is, these are the condition. We derivate the Hamiltonian function firstly with respect to control variable CT and get U dash CT e की पावर minus PT is equals to lambda T, that is DH upon DCT is equals to 0. Second condition, that is differentiating
Hamilton function with respect to at, dh, the derivative of h with respect to at is equals to 0. We get first order condition as del pi by del t is equals to minus del t r bracket rt minus n. The third condition, that is differentiating Hamilton function with respect to lambda t, we get dA upon dt is equals to wt plus rt minus n into at minus ct. The fourth condition is limit t tends to infinity lambda t at is equals to 0. This is the transversality condition. And the last condition is limit t tends to 0 at e की power minus integration of 0 to t rt minus n into dt is greater than equal to 0. That is no Ponzi गेम कंडीशन. देखो जो दो नो पॉन्जी गेम कंडीशन है वो इसलिए ली गई ताकि हम रूल आउट कर सके इन्फिनाइट इंडेप्टनेस बाय एनी फैमिली. क्योंकि एक हाउस होल्ड अगर नेट डेटर है टेम्परेरीली, दैट इज़ उसकी जो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एसेट है वो नेगेटिव है टेम्परेरीली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होराइजन उसको एसेंशली वो रीपे करना पड़ेगा अपनी पुरानी डेट को एंड होल्ड करना पड़ेगा नॉन नेगेटिव एसेट स्टॉक. ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी एंड यूज़ करेंगे 3b टू एलिमिनेट लैम्डा टी. तो हमारे पास हो जाएगा माइनस सी यू डबल डैश सी अपॉन यू डैश सी इज इक्वल टू सिग्मा. ये तो हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सी. सो वी गेट एन इक्वेशन डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी टी अपॉन सिग्मा आर टी माइनस एन माइनस पी. अब इसे कंपेयर करो डिसेंट्रलाइजर सोशल प्लानर में हमें क्या मिली थी कंडीशन डी सी अपॉन डी टी. ये लिखा सी टी अपॉन सिग्मा एफ डैश के माइनस एन माइनस पी. तो देखो जो इक्वेशन 3b है और इक्वेशन ये 6b निकाली है, जो ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं अलॉन्ग विथ ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन दैट इज़ 4b और नो पॉन्जी गेम कंडीशन दैट इज़ 5b. ये बताती है मूवमेंट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन एंड पर कैपिटा एसेट स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड अलॉन्ग ऑप्टिमल पाथ. देखो आर टी is equals to f dash kt and wt is equals to f kt minus kt into f dash kt हमने पहले देखा था. सिंस हाउस होल्ड्स के पास परफेक्ट फोरसाइट है बट ये दे डू नॉट नो रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल विद पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक बट कैन गेस वैल्यू ऑफ WNR दैट इज वेज रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एट एवरी पॉइंट इन टाइम. इक्विलिब्रियम में हाउस होल्ड बोरो कर सकते हैं ईच अदर से, तो नेट बोरोइंग जीरो होगी दैट इज़ 80. पर कैपिटा एसेट एक्यूमुलेशन शुड बी इक्वल टू पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक KT. पुटिंग RT इज इक्वल टू एफ डैश KT और WT इज इक्वल टू एफ KT माइनस KT इंटू एफ डैश KT. हम अगर इक्वेशन 3b और 6b में डालेंगे तो हमें वील गेट डिफरेंशियल इक्वेशंस जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगी टू सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हमने पिछली वीडियो में ऑब्टेन की थी जब वो सोशल प्लानर केस था. तो therefore consumption path and accumulation path will be exactly equal under decentralized problem, under perfect foresight that is rational expectations and social planner problem. तो जो optimal path होगा consumption और accumulation का वो exactly equal होगा किस में, social planner problem में और decentralized problem में. जब क्या होगा जो households होंगे उनकी perfect foresight होगी that is उनके पास rational expectations होगी. जो हाउएवर जो इक्विलेंस है दोनों के बीच में डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट फोरसाइट दैट इज़ रैशनल एक्सपेक्टेशन. अगर रैशनल एक्सपेक्टेशंस होगी तो क्या होगा जो मार्केट इक्विलिब्रियम जो कि डिसेंट्रलाइज्ड के केस में आता है इज इक्वल्स टू सोशल ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम या इक्विलेंस होगा. ठीक है. ऑल्सो देयर इज अ स्मॉल टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट इन रामसे मॉडल. तो ये रिकार्डियन इक्विलेंस है. अगर हम लोग गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करें डिसेंट्रलाइज रामसे मॉडल में तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस कैसे फाइनेंस करेगी, या तो एक टैक्स लगा सकती है, लमसम टैक्स लगा सकते हैं हाउस होल्ड इनकम में हर पीरियड पे. देखो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अनरिलेटेड है टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो यूटिलिटी फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स तो अनचेंज रहेगा बट बजट कॉन्स्टेंट चेंज होगा हाउस होल्ड क्योंकि इनकम टैक्स हो रही है तो इनकम कम हो जाएगी. सिंस गवर्नमेंट टेक्स अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड इनकम क्योंकि टैक्स हो रहा है लग रहा है इनकम पे, तो बजट कॉन्स्टेंट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी. तो द न्यू बजट कॉन्स्टेंट वुड बी WT plus RT AT minus T, whereas T is the tax imposed by government. So the budget equation will be dA upon dt is equals to WT plus RT minus N into AT minus CT minus T. तो इसकी वजह से क्या होगा, ओनली इक्वेशन जो DK by DT equals to 0 है वो शिफ्ट कर जाएगी इनवर्ट बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स. ये देखो पहले आई विल शो यू द डायग्राम. देखो DC by DT तो एज इट इज़ है, पहले ही थी
वन सेक, पहले ये इक्वेशन थी सपोजिटली, ये थी डी के बाय डी टी, अब टैक्स के बाद ये हो गई डी के बाय डी टी, तो ये जो इन्वर्ट शिफ्ट हुआ ये वाला, ये टैक्स की वजह से हुआ, ठीक है। तो मोड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैटर नहीं करता, टैक्स फाइनेंसिंग इज इक्वल्स टू डेब्ट फाइनेंसिंग इज नोन एज रिकार्डियन इक्विवेलेंस, गिवन दैट हाउस होल्ड्स आर इंडोउड विद, मतलब गिवन दैट कि हाउस होल्ड्स के पास परफेक्ट फोरसाइट है, दैट इज एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस है, तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस है। मोड ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मैटर नहीं करेगा, टैक्स फाइनेंसिंग करो या डेब्ट फाइनेंसिंग करो, दोनों ही टर्म्स में इक्वल आएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड हाउस होल्ड प्रॉब्लम in Ramsey model या decentralized Ramsey model. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.